सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो 24x7 पंजाब। मुख मंत्री ने वित्तीय साल 25-26 ਲਈ 58,514 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਹਰ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58,514 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 67% ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 24 ਪੈਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਲਟੋ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ दिशाहीन बजट है। पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा किया। मक्की का गेहूँ का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूँ खरीदी नहीं गई क्योंकि गेहूँ का सीज़न खरीदने का अब है। जो भी प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा उसका हम गेहूँ का सीज़न जो होगा उसमें वृद्धि की गई। इस बार हमने कहा कि मक्की का जो मूल्य है प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की का वो 40 रुपये सरकार खरीदेगी और 60 रुपये जो गेहूँ वो सरकार खरीदेगी। इसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। उसका मूल कारण बंदरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है, नील गाय सूरों द्वारा फसलों को उजाड़ना है। तो हमने कहा कि कोई ऐसी उपज ढूंढी जाए जो किसान लगाए और किसान को उसकी आय हो। इस तरह से हमने पाया कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, अगर उसको लगाते हैं तो उसको बंदर नहीं खाता है। जब अंकुर फूटता है तो बंदर उसको निकाल के कई बार मक्की के अंकुर को फूट कर निकाल के खा लेता है। और हमने ये पाया कि 9 महीने में हल्दी तैयार होती है। उसे 90 रुपये 90 रुपीस प्रति किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी और तकरीबन 9 महीने बाद जब किसी के पास 10 क्विंटल मक्की होगी उसकी जेब में 1 लाख रुपया होगा। उस मक्की के साथ अगर वो गेहूँ भी पैदा करता है, अगर 10 क्विंटल गेहूँ होगी तो 60,000 रुपया
उसको मिलेगा। और उसके साथ 40 मक्के भी पैदा करता है, 40,000 रुपया भी उसको मिलेगा। तो एक गांव के किसान के पास जो कार्य करेगा तो उसको एक साल में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से आय हो सकती है। हल्दी को उगा के उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पर सरकार खरीदेगी। उसके अलावा इन खेतों को बचाना है हमने। तो आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री संरक्षण योजना लाई है कि नील गाय ना घुस सके, तो उसमें जालीदार सोलर ऊर्जा और नुकीली तारों का इस्तेमाल के लिए हमने बजट में प्रावधान किया गया। एक साल बाद आप इनकी स्थिति में बदलाव देखोगे। जब हमने दूध का रेट बढ़ाया तो आनी, रामपुर, रोडू में वो बदलाव हमें देखने को मिला। अब हमें एक साथ दूध का रेट हम पहले अगर बढ़ाएं तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमने ढगवार का काम शुरू कर दिया, जो अगले मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से खेती को कैसे मजबूत किया जाए और गांव में रहने वाले किसान और आम आदमी जो खेती पर निर्भर है उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये दृष्टिकोण रखा गया। बजट प्रस्तुत किया गया, वो कुल 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रस्तुत किया गया। अगर हम पिछले कार्यकाल से अगर हम इसमें देखें, जो हमारी जो इंक्रीज बजट की होती थी वो कितनी होती थी? 2018-19 में जो हमने बजट प्रस्तुत किया था वो 41,440 करोड़ का था और उसमें जो इंक्रीज थी 5,702 करोड़ रुपीस की, लगभग 16% की इंक्रीज थी जो हमने पहला बजट प्रस्तुत किया। 2019-20 में जो हमने बजट दूसरा बजट अपना प्रस्तुत किया वो बजट जो था 44,388 यानी कि 44,368 करोड़ रुपए का, और जो इंक्रीज उसमें थी वो थी 2,948 करोड़ रुपए की, लगभग 3,000 करोड़ रुपए की, और 7.11, और ये दौर कोविड का था, आपको मालूम है। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया 49,131 करोड़ का, और उसमें जो इंक्रीज थी 4,743 करोड़ की थी, लगभग 10.70% की 70% की जो है उसमें इंक्रीज थी। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया तो वो बजट था 2021-22 का बजट, जो उसमें 50,192 करोड़ रुपए और इंक्रीज थी 1,061 करोड़ की, यानी कि 2.61, यानी कि ये जो बहुत कोविड का बहुत बड़ा संकट था उस वक्त का, वो ये दौर था। ये 2022 में जो बजट प्रस्तुत किया हमने तो वो 51,365 करोड़ का 1,173 करोड़ रुपए की, और ये दोनों बजट जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये कोविड के दौर के बजट थे, और जिसमें बहुत बड़ा इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की तबाह हुई थी, प्रदेश में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 23-24 जो हमारा अंतिम बजट रहा है 53,412 करोड़ का 2,047 करोड़ की इंक्रीज थी और लगभग 4% की इंक्रीज थी। हाँ जी, ये 2047। हाँ, और उसके बाद 2024-25 का जो बजट वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रस्तुत किया था, और उसमें जो इंक्रीज थी वो 5,031 करोड़ की इंक्रीज थी, 58,443 करोड़ का था, और लगभग 9.42 करोड़ की इंक्रीज थी। और अब की बार की बजट की जो है 25-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ का, और इसमें आज तक के इतिहास की न्यूनतम इंक्रीज है 71 करोड़ ओनली, और 0.12% ये इंक्रीज है बजट की। इस बजट से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है?